हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस बायोलॉजी क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिवीजन ऑफ फाइलम कोडाटा एंड वी हैव सीन हाउ दैट हैज बीन डिवाइडेड and in your course syllabus there are certain classes of chordata that we'll be discussing about, and today we'll start with the first class of chordata, that is cyclostomata. It comes under the group of agnatha. agnatha मतलब वो organisms होते हैं, वो animals होते हैं जिनका जॉ नहीं होता, they do not have a proper jaw, तो इसलिए उनको agnatha बोला जाता है. And under the group agnatha, this is the only class called as cyclostomata. So students, let's begin this topic of class cyclostomata. The first point, many mainly ectoparasites having sucking circular mouth without jaws. तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, इनका सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉ. द वर्ड साइक्लो लिटरली मीन्स सर्कुलर एंड स्टोमा मीन्स माउथ. और ये लोग एक्टोपारासाइट्स होते हैं. दे विल बी अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द फिश. जनरली ये लोग एक्वेटिक होते हैं, तो जो फिश का बॉडी होता है उसके सरफेस में ये लोग अटैच होते हैं लाइक पैरासाइट्स, एंड दे टेक ब्लड फ्रॉम दिस इंडिविजुअल्स एज फूड. सो दे आर मेनली ectoparasites having sucking circular mouth without jaws. Now the second property of this group is they possess elongated fish like body with 6 to 15 gill slits for respiration. तो ये जो gill slits होते हैं, these are actually small cut marks present on the lateral side of the body through which they can carry out respiration. उसी से वो लोग respiration करते हैं. This is an organism belonging to this group cyclostomata. तो आप लोग जैसे देख सकते हो, इसका माउथ देखो आप, सर्कुलर है. there is a circular mouth, does not have any jaw, कोई upper jaw lower jaw वैसा कोई भी structure नहीं है. total mouth is circular and suctorial. suctorial मतलब it can suck out the blood or the nutrients from its host cell. now this is a trout fish, lake trout fish, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बॉडी के आउटर सरफेस में ये ऑर्गेनिज्म अटैच है. दिस इज ए लैम्प्रे. तो ये जो एग्जांपल आप लोग देख रहे हो, दिस इज ए सी लैम्प्रे. नाउ ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कट मार्क्स हैं. दीज आर गिल स्लिट्स. ये छोटे कट मार्क्स हैं, these are the gill slits. And in this group you will find कि some around 6 to 15 such gill slits can be present, which helps in respiration. Functions quite similar to the gills of the fishes. Okay, they do not possess any scales on the body, and fins are इवन पेयर ऑफ फिन्स. ठीक है, इनका कोई इवन पेयर ऑफ फिन्स नहीं होता, मतलब दे नॉट हैव पेयर ऑफ फिन्स. इनके बॉडी में आप देखो पेयर नहीं है. अगर फिशेस के बॉडी में आप लोग देखोगे, यहाँ पे एक फिन होगा, यहाँ पे एक फिन होगा, पेयर में होता है. इनमें वैसा नहीं होता है. इट इज नॉट प्रेजेंट इन देयर बॉडी. इंस्टेड यू विल फाइंड कि इनके बॉडी में अगर आप देखोगे फिन्स होते हैं, एक सिंगल डोर्सल फिन होता है और यहाँ पे कॉडल फिन, वो भी सिंगल है, ये पेयर में नहीं है. So paired fins are not present, they are absent, as well as scales भी नहीं होते हैं. The body does not contain scale. Their body is quite slippery kind, थोड़ा slimy slippery type का रहता है. Besides that, the skull or the cranium and the vertebral column are cartilaginous. इनमें कोई bony structure भी नहीं होता. They do not have any kind of bony structure in their body. Their skull and the vertebral column, or you can say their skeletal system, is primarily cartilaginous. It is made up of cartilage, which is a very soft bony tissue. ठीक है. द सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप. क्लोज टाइप सर्कुलेशन का मतलब ये है कि इनका जो ब्लड है ये बॉडी कैविटी से डायरेक्टली फ्लो नहीं करता. इट फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल्स. तो इनके बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, देयर आर आर्टरीज, देयर आर वेन्स, एंड थ्रू दीज ओनली द ब्लड फ्लोज. तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन. Besides that, these are mainly marine animals but migrate to fresh water for spawning. After spawning, they die and the larva, after metamorphosis, return to the sea. तो इनका एक बहुत यूनिक सा लाइफ साइकिल होता है. ये एक्चुअली मेनली मराइन एनिमल्स हैं. ये लोग सॉल्ट वाटर में रहते हैं, इन द सीज एंड ओशंस दे लिव. बट जब इनका रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, मतलब व्हेन दे हैव टू रिप्रोड्यूस एंड ले एग्स, दे कम to the fresh water. So during their spawning or the reproduction process, they come or they migrate to the fresh water where they lay their larva, and this larva then change into adults through process called as metamorphosis. और जब ये adults हो जाएंगे, adults तो नहीं बोल सकते, juvenile. ठीक है, तो ये जब juvenile stage में होंगे तो ये फिर से return कर जाते हैं sea में. अपना मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ वो सी में स्पेंड करेंगे. फिर जब रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा, वो लोग लौट आएंगे, दे विल रिटर्न बैक टू the fresh water. There they will reproduce, and after reproduction the adult individual dies. तो adult
रिप्रोडक्शन करने के बाद मर जाता है, उसका जो लार्वा होता है वो मेटामॉर्फोसिस होगा और फिर से रिटर्न कर जाएगा सी में, ठीक है। दिस इज हाउ स्पॉनिंग टेक्स प्लेस। हियर यू कैन सी दिस इज अ ग्रुप ऑफ जुवेनाइल लैम्प्रेस which are they are being reproduced in a small pool of fresh water। तो ये fresh water rivers में ज़्यादातर होता है, तो इस तरह का इनका प्रोसेस होता है। वेरी कॉमन एग्जाम्पल दैट इज पेट्रोमाइजॉन, जिसको हम लोग लैम्प्रे बोलते हैं, जिसका पिक्चर आपने थोड़ी देर पहले देखा। माइक्सीन, दिस इज कॉल्ड एज हैग फिश, दो वी कॉल इट एज ए फिश, इट इज नॉट कंप्लीटली ए फिश, ठीक है। द फर्स्ट वन इज टेरोमाइजॉन, दैट इज द लैम्प्रे, और ये जो सेकंड वाला पिक्चर आप देख रहे हो दिस इज हैगफिश। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हो कोई स्केल्स नहीं है, डज नॉट हैव पेयर्ड फिन्स, सर्कुलर सक्टोरियल माउथ, तो ये इनका आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। सो दिस इज द फर्स्ट क्लास कॉल्ड एज द साइक्लोस्टोमाटा। नाउ द अदर ग्रुप यू विल फाइंड की that is the Pisces, the super class Pisces. Now it has two different class, super class Pisces और fishes जो होते हैं उनके दो क्लास होते हैं। पहला वाला होता है कॉन्ड्रियोक्थाइस और दूसरा वाला होता है ऑस्टियोक्थाइस, ठीक है। तो कॉन्ड्रियोक्थाइस ऑस्टियोक्थाइस कॉमनली रेफर्ड टू एज कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश रेस्पेक्टिवली। तो ये दोनों क्लास भी हम लोग एक ही साथ डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास दैट इज कॉन्ड्रियोक्थाइस। Chondriocthys, these are mainly marine animals with a streamlined body and cartilaginous endoskeleton. The word chondro means cartilage, ichthyus means fish. तो simply called as they are cartilaginous fish. इनका जो skeletal system होता है उनमें कोई भी bones नहीं होता, do not have any kind of bones. The whole body or the endoskeleton is made up of cartilage only. Okay, तो इनके बॉडी में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ हार्ड पार्ट उनका टीथ होता है, द टीथ इज द हार्ड स्ट्रक्चर, अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द कंप्लीट बॉडी, द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द बॉडी इज मेनली मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस। नाउ उनका स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब you'll find the head will be pointed towards the front and the body will be slanting in such a way that it will not cause any friction while moving through the water। तो जैसे पानी मूव करेगा इनके बॉडी से ऐसे ऊपर मूव कर जाएगा और नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, it will not cause much of a friction। So this kind of body arrangement is called as streamline body। Okay, now इनका जो माउथ होता है वेंट्रल होता है, as you can see here, I'll just remove the rest of the text। they have a ventral mouth towards the ventral side of the body। mouth इनका नीचे रहता है, this is the dorsal side, upper side of the body, this is the ventral side, lower side of the body। तो माउथ नीचे की तरफ होता है, ventral side होता है। एक persistent notochord होता है because chordates हैं, तो they will have a notochord। gill slits are present without operculum। now ये gill slits हैं, ये जो structures आप लोग देख रहे हो these are the gill slits। these structures help in respiration, function similar to the gills of any other fish। और ये ज्यादातर किसी कवरिंग से कवर्ड नहीं होते हैं, दे आर नॉट कवर्ड बाय बोनी स्ट्रक्चर ओपरक्यूलम। तो ये जो ओपरक्यूलम है हम इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज द ओस्टिकथाइस। वहां पे गिल्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा बोनी कवरिंग होता है जिसको ओपरक्यूलम बोला जाता है, इनमें वो बोनी कवरिंग नहीं होता, दे डू नॉट हैव दैट बोनी कवरिंग। नाउ द स्किन इज कवर्ड विथ प्लैक्वाइड स्केल्स, इनके बॉडी में स्केल्स होते हैं, वो एक स्पेशल टाइप का स्केल होता है जिसको प्लैक्वाइड स्केल बोला जाता है। पावरफुल जॉज विथ बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ, मॉडिफाइड प्लैक्वाइड स्केल्स, इनका जो टीथ होता है वो उनका मॉडिफाइड स्केल होता है। देखो हमने पहले ही बोल दिया इनका कोई हार्ड बोनी स्ट्रक्चर नहीं होता, तो जो टीथ होते हैं वो हार्ड होते हैं लेकिन वो मॉडिफाइड प्लैक्वाइड स्केल्स होते हैं। हाउ डू दिस प्लैक्वाइड स्केल्स लुक लाइक? तो दिस इज ए वेरी माइक्रोस्कोपिक व्यू। शार्क का बॉडी अगर आप ऊपर से देखोगे किसी भी कॉन्ड्रियोक्थाइस का, तो ऊपर से कुछ नहीं पता चलेगा, बट व्हेन यू मैग्नीफाई इट अंडर ए माइक्रोस्कोप द स्किन विल अपीयर समथिंग लाइक दिस। उसका स्किन कुछ इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओवरलाइंग प्लेट्स हैं, ओवरलाइंग स्केल्स हैं जो प्लेट्स की तरह अरेंज्ड हैं, हैविंग ए लिटिल रगेड एज, इनका एज जो है थोड़ा रफ और पॉइंटेड है। तो इस टाइप के स्केल्स को बोला जाता है प्लैक्वाइड स्केल्स। ओके, रगेड एजेस ऑफ द स्केल विच आर इंटरलॉकिंग और इंटरलैपिंग, ओवरलैपिंग होते हैं। तो ये अरेंजमेंट जो होता है इसे हम लोग प्लैक्वाइड स्केल्स बोलते हैं। एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, इनमें कोई एयर ब्लैडर नहीं होता, एज ए रिजल्ट इनको फ्लोट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हैंस दीज एनिमल्स हैव टू स्विम कॉन्टिन्यूअसली टू अवॉइड ड्राउनिंग। तो इनको कॉन्टिन्यूअसली तैरते रहना पड़ता है क्योंकि अगर कहीं पे रुक गए, एयर ब्लैडर नहीं है, बाउंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे और डूब जाएंगे। सिर्फ फिश हैं, पानी में है, तो हमको लगता है कभी नहीं डूबेंगे, नो इट इज नॉट ट्रू। इफ दे डू नॉट गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, इफ इट इज नॉट पास थ्रू द गिल्स, दे विल डाई। तो वो सिंक कर सकते हैं, दे कैन सिंक, दे कैन ड्राउन। ओके, so this is the property, certain property of the class Chondriocthys। now let's get back to some more properties of this group।
They have a two chambered heart, one auricle and one ventricle. तो इनका two chambered heart होता है, एक auricle एक ventricle. The auricle receives the deoxygenated blood and the ventricle passes on the deoxygenated blood. This is how their heart looks like. दो ही चैम्बर होते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो. ये अपर चैम्बर, इसको एट्रियम बोला जाता है. ये लोअर चैम्बर, इसको वेंट्रिकल बोला जाता है. तो ब्लड आता है from the veins into the atrium, gets into the ventricle. From the ventricle again it is pumped out into the gills. तो ये वेंट्रिकल से इनका ब्लड गिल्स में जाता है जहां उसका प्यूरिफिकेशन होता है. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. दैट मीन्स दे आर पाइकिलोथर्मल. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब ये होता है कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाएंगे. बाहर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, इनका बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाएगा. बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, इनका बॉडी टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा. तो इसको हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं. मतलब उनका बॉडी टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के हिसाब से आइदर गिरेगा या फिर बढ़ेगा. ठीक है. सो दिस ऑर्गेनिजम्स हैव टू कंटिन्यूअसली कैरी आउट सर्टन एडाप्टेशंस. ये सर्टन एडाप्टेशंस करते रहते हैं टू एडजस्ट टू दैट काइंड ऑफ चेंजिंग एटमॉस्फेयर. नाउ सम एनिमल्स पोजेस पॉइजन स्टिंग. कुछ ऑर्गेनिजम्स में एक पॉइजनस स्टिंग होता है, एज सीन इन केस ऑफ ट्राइगॉन. एंड इवन इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स लाइक इन टॉर्पीडो फिश. इसको इलेक्ट्रिक ईल भी हम लोग बोलते हैं. तो ऐसे कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स में इनमें देखने को मिलते हैं. नाउ दिस इज द पॉइजन स्टिंग ऑफ ट्राइगॉन. ट्राइगॉन मतलब इसको स्टिंग रे बोला जाता है. एज यू कैन सी हियर देयर इज अ वेरी पॉइंटेड स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर एंड इट कंटेन्स वेनम. ठीक है. तो इफ इट इज इंजेक्टेड इनटू योर बॉडी, it can inject venom and it can kill you sometimes. Besides that, electric fish होता है जो electric current generate करता है, that can kill an individual. The torpedo fish, तो वो electric organs भी उसमें होते हैं. The sexes are separate with males bearing claspers in their pelvic region. तो ये जो claspers होते हैं वो reproduction में help करते हैं. They are one kind of accessory reproductive structure, you can call them. And sexes are separate, means males and females will be different, morphologically different. इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, उनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है. एंड दे आर विविपेरस. नाउ सी, दे आर फिशेस, दे बिलोंग टू कार्टिलेजिनस फिश ग्रुप. बट ये फिशेस विविपेरस होते हैं, मतलब दे विल गिव बर्थ टू यंग वन, दे डू नॉट ले एग्स. शार्क हो गया, स्टिंगरे हो गया, दे डू नॉट ले एग्स, दे गिव बर्थ टू द यंग वंस. दैट इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द कॉन्ड्रियोक्थाइस. कॉमन एग्जांपल स्कोलियोडॉन, दैट इज द डॉग फिश. ये कॉमनली आपको मिल जाएगा, हम मतलब लैब में भी रखते हैं, बायोलॉजी लैब में भी आपको देखने को मिल जाएगा. प्रिस्टिस, ये एक बहुत प्रिमिटिव फिश है. इसको सॉ फिश बोला जाता है क्योंकि इसका जो स्नाउट रीजन है, माउथ का ऊपर का जो रीजन है, वो लंबा एक सॉ की तरह मॉडिफाई हुआ होता है. दिस इज अ वेरी प्रिमिटिव फिश. ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट कर रहा है. कार्कारोडोंट, द ग्रेट व्हाइट शार्क, ऑल द शार्क, इनफैक्ट यहाँ पे हमने कार्कारोडोंट का एग्जांपल दिया है, बट ऑल द शार्क बिलोंग टू दिस ग्रुप. ऑल द शार्क, ऑल द स्टिंगरे, ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉ फिश एंड ऑल, ये सब बिलोंग करते हैं इसी ग्रुप में. दैट इज द कॉन्ड्रियोक्थाइस. दिस इज द शॉ फिश, एज यू कैन सी. तो मैंने आपको बोला ही था, शॉ फिश, उसका माउथ सेगमेंट जो है वो शॉ लाइक होता है, आरी जैसा होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया शॉ फिश. दिस इज कार्कारोडोंट, which is your great white shark, and this is the stingray. जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा, आप जो ऊपर ये पिक्चर देख रहे हो, स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द एनिमल, इट इज ट्राइगॉन और द स्टिंगरे. नाउ द नेक्स्ट group of fishes is the osteoichthyes. Osteo means bone, ichthyus means fishes. So simply called as bony fishes. They are commonly called as bony fishes because their endoskeleton is made up of bones. Their endoskeleton is not made up of cartilage, it is made up of bony structures. Osteo means bone, ichthyus means fish. तो आप जो भी मछली खाते हैं जिसमें कांटा निकलता है, आप लोग जो मछली का कांटा बोल रहे हो वो उसका बोन है एक्चुअली. तो जो मछली में ये कांटा निकलता है वो सब इसी ग्रुप में बिलोंग करेंगे. दे विल बी ऑल osteoichthyes, they will be all bony fishes. Now this is how their endoskeleton looks like. अगर इन फिशेस का बाहर का स्किन और ऑर्गन्स निकाल दोगे तो उनका स्केलेटल सिस्टम कुछ इस तरह का दिखेगा. So that is why they are called as the bony fishes. Now they also have a streamlined body. इनका भी वैसे streamlined body होता है with a terminal mouth. अब इनके माउथ का पोजीशन देखो, ये पूरा सामने है एट द टिप, लेकिन कॉन्ड्रियोक्थाइस में उनका माउथ नीचे था, यहाँ पे टुवर्ड्स द वेंट्रल साइड. Okay, so their mouth is completely at the tip, called as a terminal mouth, and they possess four pairs of gill covered with operculum. इनमें gills होते हैं which are covered with a bony structure called as operculum. Now see, operculum we had not seen in case of your chondriocthys. Chondriocthys में operculum नहीं होता, but here in this group you'll find this bony covering is present. The operculum is
present. So this is the operculum. In the picture you can see, ये देखो माउथ है उसका, यहाँ पे आपके गिल्स होते हैं, तो गिल्स के ऊपर यहाँ पे देखो ये एक बोनी कवरिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक. दिस यू माइट हैव सीन, ये जो बोनी फिशेस मार्केट में मिलते हैं आप लोग देखे होंगे. इसको जब आप लिफ्ट कर दोगे इसके नीचे उसके गिल्स होते हैं. द गिल्स आर प्रेजेंट जस्ट बिलो दिस, रेड कलर के लाइंस होते हैं. द गिल्स आर प्रेजेंट. The skin is covered with cycloid scales, also called as stenoid scales, and also possess air bladder to regulate their buoyancy. तो इनको continuously swim करना नहीं पड़ता, इनका air bladder होता है तो automatically float करते हैं. They will not sink, they will not drown. At the same time इनका जो scale होता है वो cycloid होता है. It looks something like this. तो अब इसको कंपेयर करो, प्रीवियस वाला हमने जो देखा था कॉन्ड्रियोक्थाइस में वो बहुत रगेड था, शार्प एज्ड था. ये cycloid मतलब semicircular, like this. As you can see, their scale is semicircular, though this scale is also not completely smooth, but it is quite smoother than the previous scales we have seen in case of chondriocthys. तो ये जो semicircular scales होते हैं इनको बोला जाता है cycloid scales. The word cyclo literally means circular. Cycloid means circular like. ठीक है. And they have a two chambered heart. Same जो हमने पहले देखा था chondriocthys में, इनमें भी वही होता है, इनका two chambered heart होता है. Besides that, they are also cold-blooded animals. Fishes हैं तो cold-blooded animals ही हैं. Pykilothermal बोला जाता है. They cannot regulate their body temperature, and as per the outer atmospheric temperature, their body temperature will also fluctuate. Sexes are separate. Fertilization is generally external. Oviparous and development is direct. तो सेक्सेस सेपरेट है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं. फर्टिलाइजेशन जनरली एक्सटर्नल होता है. बोनी फिशेस में, बहुत सारे बोनी फिशेस में मतलब फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल नहीं होगा, इंडिविजुअल के बॉडी के बाहर होगा. तो इन दैट कंडीशन फर्स्ट the female will come and lay the eggs, then the male will go and release the sperms over the eggs and fertilize them outside the body. So इसको बोला जाता है external fertilization. Oviparous means they lay eggs, they don't give birth to young ones. ठीक है. Bony fishes, oviparous. Chondriocthys or the cartilaginous fishes, they are viviparous and their development is direct, means there is no intermediate stage. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. Now what are the examples? Exosiotus, that is a flying fish. Hippocampus, seahorse. Labio, that is Labio rohita, complete name. रोहू fish बोला जाता है. Clarius, the magur fish. Beta, the fighting fish, ये एक ornamental fish है. तो ये अलग अलग organisms होते हैं. तो पहला वाला आप जो देख रहे हो पिक्चर, this is Exotus, which is flying fish. देखो वी कॉल इट एज फ्लाइंग फिश, बट ये फ्लाई नहीं करता, ये एक्चुअली ग्लाइड करता है. इट ग्लाइड्स ओवर द वाटर सरफेस व्हेन इट फील्स डेंजर, तो इसको फ्लाइंग फिश बोला जाता है. नेक्स्ट हिपोकैम्पस, दैट इज अ सी हॉर्स. ओके, ये भी एक बोनी फिश वैरायटी में है. दो इट लुक्स लाइक अ लिटिल बिट वियर्ड काइंड ऑफ एन एनिमल, बट इट इज अ बोनी फिश. रोहू फिश, ये तो आप लोग मार्केट में भी देखते होंगे, ये आप बहुत कॉमनली हम लोग उसको फूड की तरह कंज्यूम करते हैं. तो दैट इज लोबियो. नाउ दिस आर द कैटफिश व्हिच आर कॉल्ड एज द मागुर फिश. कैटफिश बोल सकते हैं, उड़िया में मागुर बोला जाता है. क्लैरियस द साइंटिफिक नेम. नाउ दिस इज द फाइटिंग फिश. एक ऑर्नामेंटल फिश है, बहुत ब्यूटीफुल होता है, वेरी ब्यूटीफुल, ब्राइट कलर्स होते हैं इसमें, ब्लू रेड टाइप के कलर्स. और ये ऑर्नामेंटल फिश है, मतलब हम लोग इसको डेकोरेशन पर्पस के लिए हम लोग इसको एक्वेरियम में रखते हैं, इंक्लूडिंग गोल्ड फिश एंड ऑल. गोल्ड फिश, बैट फिश, ये सारे फिश हम लोग एक्वेरियम में रखते हैं. तो ये बोनी फिश वेराइटी में बिलोंग करता है. So students, this is about the first three class of your chordates. The first one that we discussed was Cyclostomata belonging to Agnatha. Now the next two, that is Chondriocthys and Osteocthys, belonging to the superclass Pisces. And in the next class, we'll move on to the Tetrapoda. Okay, there are 4 classes in Tetrapoda. That is Amphibia, Reptilia, Apes, and Mammalia. And we'll be discussing that in the next class. Okay, thank you everyone.